So, are we rolling? Oh, yes. Good evening, everybody. Welcome to my segment, Choice That Matters. Well, last episode was the first one of this very new thing which we have started on our handles. And technically, what we felt is this episode should be recorded and should be posted because it contains a lot of emotions, and we definitely discuss about life from our guest perspective. And as you know, this show is about women, from a woman, by a woman, and for the entire world. So who's the guest for tonight? Quickly let me introduce about her. She is someone who I'll say the Kangana Ranaut of our industry. Why I say that? When I say this, I really mean it, because she has been one personality जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद हर वो hardships देखी है जिसके बारे में as an artist हम सिर्फ सोच सकते हैं. और अगर उनके बारे में थोड़ा एलैबोरेटली मैं बताऊं तो शी हैज़ tasted wide varieties of artistic field in our career. Like she has been a dancer, she has been a singer and what not. She will tell all about herself today and she will unveil something जो कि शायद उन्होंने किसी और शो में बताया नहीं है. So let me quickly go to her because you know I can't miss my chance to know her from a different perspective. She is Navya Jayati for all of us. So let's go and check out what she has in store for all of us tonight. So finally I'm here and I'm meeting my guest for tonight. She is Navya Jayati, who everybody knows by now, and but अभी तक जो आप जानते हो उससे थोड़ा अलग आज जानने वाले हो, क्योंकि you know this side of her nobody knows and she even doesn't have been ever questioned. No, I never answered. Right. And ये जो segment है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको इस segment में बुला रही हूँ, because this is something which is very hurt to hurt. Yeah, and actually. In general you would agree to the point कि एक woman दूसरी woman को कभी support नहीं करती. हाँ. जो भी करती है वो बहुत fake होता है. Sorry, I'm saying that on camera. Anyways, but thanks to you कि इतना खूबसूरत सा शो में जिसमें कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें मेरे लाइफ के रिवील होने वाले हैं, लेकिन मैं आज कुछ बताने वाली हूँ मेरे लाइफ कैसा गया है, कैसा बीता है, how it changed. So yeah, let's see, it will be interesting. Right. So before I proceed with the questions, I really want to ask you this कि are these 5 months of your जो कि सभी के लिए tough time था, were you good enough, where your family was good, everything is good from your side? Actually good in the day, हर चीज़ अच्छी थी but work is missing. So काम को बहुत मिस कर रहे हैं, like और सभी घर पे ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ, जो कि बहुत टाइम से मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी. आई नो कि कंटिन्यूसली काम कर रही थी मैं, आई वाज लाइक अ रोबोट काइंड ऑफ फील आ रहा था. पर जब ये सब हुआ एंड अभी चल रहा है तो यस, आई एम गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू माय फैमिली एंड कुछ नए नए चीज़ें मैं भी इन्वेंट कर रही हूँ अपनी. Who all are there in your family? Though everybody knows it, but I would definitely want to. मेरे फैमिली में माई मॉम, डैड, मी, माई बिग ब्रदर एंड मेरी भाभी और एक छोटी सी नीस. ओके. और अभी नीस है तो इसलिए घर में बहुत अच्छा टाइम exactly. होगा. बट अच्छा, ये 5 महीने में मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, आई हैव फेल्ट दिस कि स्ट्रगल टाइम्स अपने याद आ गए हैं सभी को थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम रहा है. तो वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके. बट मैंने जितना जाना है नव्या जयती को, आई don't consider her just a singer. I consider her a very good and a strong woman, an independent lady. First of all, if I say that, I mean it. Why ये आप पूरे segment में सुनने के बाद जानोगे. But थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि like मैंने सुना है कि आप पहले डांसर रह चुकी हैं and that was your career. फिर shifting to singing. कैसे हुआ ये और कौन से हालातों में हुआ ये? जो मैं नॉर्मली इंटरव्यूज़ में बोलती हूँ मैं आज नहीं बोलूँगी. लेट मी स्पीक आउट. ओके. जब आई वॉज अ डांसर, आई लव डांसिंग. मैं स्कूल से ही डांस करती थी एंड एट द टाइम ऑफ आई गेस 10th के बाद एवरीथिंग वेंट ऑफ इन माई लाइफ. लाइक वी वर लीडिंग अ वेरी नाइस लाइफ, मतलब मेरे फैमिली.
एंड फैमिली लाइक एवरी संडे हम लोग रेस्टोरेंट जाते थे, खाना वाना खाना, घूमना, ये ट्रिप्स, बहुत कुछ था. बट सडनली बिजनेस लॉस हो गया पापा का. तो इन द 9th of 10th जब मैं पढ़ती थी तो इट वॉज टफ कि द ड्यूज एंड ऑल पे करना. देन वो ख़त्म हो गया. आई कम्प्लीटेड माई 10th. देन आफ्टर 10th आई हैड नो ऑप्शन देन कि मुझे पढ़ना भी है और घर के लिए कुछ काम करना है. बिकॉज वी ऑल वेंट हाई टू पूरा लो, और अपना घर और सब बेच के वी वेंट टू रेंटेड हाउस. नॉट अ बिग रेंटेड हाउस बट अ वेरी नॉर्मल टू लो, अगर मैं बोलूँ तो. लाइफ जस्ट चेंज लाइक दिस. एंड जिस वक्त मैं लाइक टीनेजर्स डू एन्जॉय देयर लाइफ और फ्रेंड्स से मिलते हैं, ये जाते हैं वहाँ जाते हैं, मुझे वो सब कभी ऑप्शन मिला नहीं. बिकॉज तब मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम करना चाहिए. लेट्स सी, वो सब बाद में देखते हैं. देन डांसिंग हेल्प मी अलॉट. मैं डांस सिखा रही थी बच्चों को, वहाँ से आई गॉट सम हेल्प इन फाइनेंशियली. देन डांस कर भी रही थी, और इन बिटवीन डांसिंग टू सिंगिंग कुछ 4-5 प्रोफेशंस और भी एड ऑन थे. वो 4-5 प्रोफेशंस क्या थे? एक तो डांस था. आई वॉज अ बैक डांसर इन सम तेलुगु चैनल, जो कि वाइजैग में एक सर थे जो कि डांस टीचर थे, बट उनका एक प्रोफेशनली डांस शोज एंड ऑल सब कुछ होता था. तो लाइक उनके पास शोज़ के लिए जाना. देन ही टुक मी फॉर बैक डांसर्स चाहिए थे उनको. कुछ चैनल्स हैं उनके लिए. तो लाइक आर्टिस्ट्स, तो आई हैव एक्चुअली सीन लॉट ऑफ तेलुगु स्टार्स पहले से ही. Okay. तो उनके पीछे डांस करना, वो एक था. आई वॉज ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, वो एक था. और क्या है, 3, आई वॉज अ मेहंदी आर्टिस्ट मैन. डैम, आई वॉज सो गुड. 4th इज़ आई वॉज वर्किंग इन थिएटर्स. और थिएटर्स वाला एक सडनली ऐसे ही आ गया. एंड जब डांस करती थी तो देयर वाज सम, आई थिंक मेरे कोई जान पहचान वाले थे, उनकी बहन वॉज डूइंग द थिएटर. उनका कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, तो उनको एक लीड के लिए एक चाहिए था. एंड इट वाज लाइक दे वर पेइंग गुड. तो बोली यार ट्राई करते हैं. तो इतना मोटा वाला पेइंग गुड वाला बात आया, ये मुझे थोड़ा आप कैमरा पे बताओ कि उस समय आपके लिए दैट पेइंग गुड अमाउंट कितना होता था? 5,000? नो, 500 रुपीज़ यार, कम ऑन. तब कौन 5,000 दे देगा? एंड 500 रुपये वॉज लाइक वेरी बिग. इनिशियली अगर मैं बोलूँ, मैंने फ्री में शोज़ भी किए हैं. देन 50 से शुरुआत हुई, तो ये हुई, तो 50 कहाँ, 500 कहाँ. तो इट वॉज अ बिग अमाउंट फॉर मी. तो 500 रुपये. एंड उस 500 रुपये के लिए मुझे इतने मोटा एक बुक था जो मुझे रट्टा मारना था फॉर द प्ले. और हम लोग ऑल ओवर साउथ इंडिया घूम रहे थे. लाइक कुछ प्लेसेस थे, तो वहाँ जाना एंड ऑल. एंड आई वॉज पेड एट दैट टाइम. रिहर्सल्स का कुछ पे करते थे एंड ऑल. एंड केम द सिंगिंग. हाँ, एंड सिंगिंग में जब अच्छा, व्हाई डिड इट क्लिक? लाइक सिंगिंग कैसे हुआ आप? क्योंकि मुझे बता रहे थे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस सब चीज़ों के बारे में, तो यू सेड मी कि पापा को लगता था कि पेरेंट्स को लगता था कि सिंगिंग इज मोर रिस्पेक्टेबल देन एनीथिंग. व्हाट वाज दैट थिंग? सी, आई लव डांसिंग. स्टिल आई लव डांस. एक डांस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से था, है, रहेगा. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डांसर, प्रोफेशनल डांसर. बट यू नो, सोसाइटी सेज अभी की जो माहौल है पूरी तरह अलग है. तब डांस इज़ लाइक, अच्छा आपकी लड़की डांस करती है, इसलिए अलग नज़र से. अभी तो बच्चों को मतलब छोटे से उनको शुरुआत होते थे, डांस क्लासेस में डालो एंड वो बड़े से कंपटीशन में जाएंगे. वैसा नहीं था. आई रिमेंबर आई वॉज सिलेक्टेड टू बूगी वूगी एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल थिंग्स एंड सम पर्सनल थिंग्स. सो या, एज अ पेरेंट तब के हिसाब से पापा को सिंगिंग पहले से ही पसंद था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मैं स्कूल में ऐसे ही गाती थी. देन या क्योंकि एक ऑडिशन जस्ट हुआ एंड आई वेंट टू गिव अन ऑडिशन बिकॉज मेरे फ्रेंड्स बोले. तो सिलेक्ट जब एक राउंड हो गई, तो ऑफकोर्स बीइंग अ पेरेंट वो एक डिफरेंस उनके मन में था कि यार डांस में उतना रिस्पेक्ट होता नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, देन सिंगिंग. तो या, तो आई स्किप्ड एंड डांस से ज़्यादा सिंगिंग जल्दी क्लिक हो गया. आई डोंट नो हाउ एंड वाई, एंड हियर आई एम. दैट्स इट. ओके, सो आप बोल रहे हो कि सिंगिंग जल्दी क्लिक कर गया, लेकिन वाज इट
मतलब दो आप तब बहुत छोटे थे और तब इतना दुनियादारी समझ भी नहीं आती लोगों को, धीरे बिल्कुल धीरे नहीं, समझ हाँ। आती। तो ये जो लाइक इनिशियल डेज में डांसिंग से सिंगिंग वाला जो सफ़र था, जो फ्लक्चुएशन था, मे बी पेरेंट्स के लिए लगता है कि ठीक है चलो दे से एंड वी डू इट, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, या व्हाट अबाउट द पीपल हु यू वर वर्किंग विद, डिड दे जज यू फॉर अ मीटर कि अरे ये तो डांसर थिला कौन अचानक से पुणे सिंगर है गला, ये सब हुआ क्या इनिशियल डेज में? क्योंकि अभी तो बहुत होता है, तब क्या हाँ होता हाँ है? हाँ, बहुत ज़्यादा जज हुई थी, लाइक वो मतलब एक अलग लेवल का क्या सरकास्टिंग, सॉरी, बहुत ज़्यादा जज हुई थी। वो सरकाज़म बोले या जो भी बोलो, वो लोग मतलब ऐसे कमेंट करते थे। एक तो और एक टेंशन वाली बात ये भी थी कि आई एम वेरी बैड इन ओडिया। उड़िया लिखना पढ़ना थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था, एंड आई एम अ संस्कृत स्टूडेंट, डीएवी स्टूडेंट मैं, और ऊपर से तेलुगु, तो वो भी एक अलग टेंशन थी। या जब रिकॉर्डिंग के टाइम पे एंड डांसिंग से सिंगिंग वाला तो बड़ा एक लोचा था अगर मैं बोलूँ तो। बरहमपुर में आई यूज़ टू डांस, एंड उसके बाद मैं सिंगिंग में वहीं पर ही शुरू की, वही छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा में मैं गाना शुरू की, तो आई वॉज डांसिंग देयर ओनली, तो वहीं पर मैंने सिंगिंग भी शुरुआत की। तो वो तो ऑफकोर्स बोलेंगे ही ना कि लाइक हाउ कम पीपल आर एक्सेप्टिंग हर, ये सुनने को बहुत मिला कि लोग सुनने वाले उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब आर्टिस्ट लोग, सिंगर्स लोग जहाँ पर वहाँ पर थे, वो लोग को प्रॉब्लम थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कम ऐसे नहीं हो सकता। एंड यू नो डांसिंग की अलग ही नज़रिया है, तो तब, अब तो नहीं, तो बोले यार ये तो ऐसे ही डांस करती थी, वाई शी इज़ अ सिंगर, कुछ तो नहीं जानती थी। बहुत ज़्यादा सुनने को मिला, इट्स लाइक, बट हाँ उस टाइम पे शायद दुनियादारी मैं उतना देख भी नहीं रही थी, मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना था शायद। अभी जब मैं मुड़ के देखती हूँ यार, मुझे लग रहा है यार इतना सब कुछ मैंने झेल के आई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने इतना झेला है। उस टाइम पे सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, आई नेवर रिग्रेटेड वॉट आई डिड, और तभी मुझे कुछ जो बोलते हैं ना कष्ट वाली फीलिंग नहीं आई थी। So there was a long phase in your career which when I guess I met you, like मैं हाँ, आपसे हाँ। आपके करियर के शुरू होने के 7-8 साल बाद मिली हूँ शायद, हाँ हाँ, और मैंने ये देखा कि you were, I don't know how will you take it, might be you can take it in a different way, या फिर कुछ और हो भी सकता है सच, but I felt like you are the sole earning member in your family. Was that also a phase in your life? Not really. Up to some time I was, but उसके बाद it was equal, and yeah, at one time as I said I was working from after my 10th. तो मैंने जैसे ही कॉलेज शुरुआत की I had to work, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, एंड चॉइस क्या, शायद कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में खुश थी, बिकॉज आई वॉज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टिंग से ही आई वॉज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मेरे ऐसा नहीं कि मैं अकेली ले रही हूँ, माई डैड एंड मॉम दे वे ऑल्सो वर्किंग इन सम हाउ, सो आई ना फेल्ट एनी बैड ऑफ थिंग अबाउट दैट, बिकॉज आज जब ये सब सोचती हूँ तो आई रियली बोलूँ तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। You should have that. In fact, the entire family तो should मुझे be कोई proud of that. प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड आफ्टर सम टाइम लाइक when my brother me both work, आगे चल के like everything is settled right now, I'm really happy कि ये जो बोलते हैं कि घर में हर किसी को एक काम करना चाहिए, एंड हर किसी अर्न की बात तो नहीं बोल रही हूँ, बट हर कोई काम करना, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ रियली गुड, उससे एक समझ आती है कि लाइफ को कैसे एक्चुअली आगे बढ़ाना। Okay, so this was all good things. Right? ओके, ये मतलब गुड थे, obviously. Okay. I'll say that. But you know, God has blessed us with a huge number of people who we consider as family. But what I personally have thought in my entire career, Okay. वो जो family आपको blood relation से मिलती है, वो family नहीं होती. Apart from mama, papa and immediate family members. Absolutely. रादर आपको समझने वाले लोग आपके दोस्त निकलते हैं, या फिर जिनसे आप लॉन्ग जर्नी में मिलते हैं ऐसे चलते चलते, तो दीज पीपल मेक अ मोर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इन योर लाइफ, राइट? Yeah, they do. सो टेल मी अबाउट हाउ was your career, your choice in whatever you are doing was taken by the other family members or the surrounding of yours? Okay, this is not a tough one anyways. I think सभी आर्टिस्ट की यही लाइक फीमेल आर्टिस्ट की यू कैन रिलेट इट वेरी वेल लगता है
So yeah, being into dance or singing or anything, it's like a woman, a girl is working, then यार घर से बाहर जाती है, काम करती है, अर्न करती है, पता नहीं उनको ईगो को लग जाती है, आई डोंट नो हाउ एंड वाई. एंड सेकेंड थिंग इन माई लाइफ, जब हमारा फेस बहुत ख़राब चल रहा था फाइनेंशियली, nobody helped at sorry in our life, in my life, जब हमारा यहाँ पर like the phase was going really bad financially, किसी ने हमारे घर वाले, like I am talking about the relatives and all, दूर वाले and all, कोई कुछ हेल्प नहीं किए उस टाइम पे. पता नहीं वो लोग मेरे बारे में तब क्या बात करते थे, बिकॉज आई नेवर फोकस्ड ऑन दैट, और या मेरी मॉम डैड भी कभी फोकस नहीं किए. बट इतना पता है कि नोबडी हेल्प्ड आउट. सिर्फ मेरे 2 मौसी हैं, समवन लाइक दे जस्ट हेल्प्ड समवॉट फिनेंशियली. बातें तो ऑफकोर्स वो किए होंगे. आई एम नेवर क्लोज टू माई ऑल द रिलेटिव्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मैच नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता. मैं अपने मॉम डैड से खुश हूँ, मेरे क्लोज्ड वन से खुश हूँ, एंड वही चलते आ रहा है. एंड अभी माई रिलेटिव्स आर लाइक वेरी हैप्पी अबाउट मी. आई डू वर्क दिस दैट, मैं ऑल ओवर इंडिया शोज़ करती हूँ. अगर कभी बाहर गई तो उनकी जगह पर गई तो बोलते हैं हमारे घर क्यों नहीं आती, हमारे घर रह जाओ ना. भाई ठीक है, ओके फाइन, बट मैं नहीं जाती, वो अलग बात है. तो थिंग आर लाइक इफ़ यू आर अ वुमन, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है. यार अ गर्ल, फीमेल हो तो यार कुछ ज़्यादा ही टॉकिंग आ जाती है. एंड इसमें बहुत कुछ पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है. पर्सनल यू नो a lot of things and we will come across Yeah. that. Okay, so this year like अभी ही जब भी ये एपिसोड हम दिखाएंगे अपने चैनल पे, आई गेस बहुत जल्दी ही ये आने वाला है. सो आपने 13 years of singing career complete किया, and as an artist you have completed 15 years. हाँ. So 13 years of singing career के बीच में when you completed 10 years of your career, हाँ. you did that big thing, you purchased a home. Yeah. Right. हाँ, राइट. How was that feeling? और मतलब कैसे, क्या मतलब तब आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि how far you have come across and what achievements did you do? That was the trophy moment, I guess. क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइफ में कितनी भी सिंगिंग ट्रॉफीज मिल जाए, बट डूइंग समथिंग फॉर योर फैमिली एंड गिविंग देम हैप्पीनेस फॉर अ लाइफ इज द बिगेस्ट थिंग, आई गेस. तो कैसा था वो फीलिंग? इज लाइक आई वाज डैम हैप्पी. ऐसा ही, और क्या बोलूँ, लाइक व्हाट मोर वांटेड इन लाइफ. मैंने अपने फैमिली को लाइक देखा है, लाइक फ्रॉम देयर टू देयर एंड देन अगेन राइजिंग धीरे धीरे. एंड राइट नाउ वी आर ओके, एंड वी आर नॉट ओके, वी आर हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी. सो सीइंग देम ऑल द टेंशंस, मेरे मन में एक ही था कि कभी ना कभी एक घर खरीदना है भाई. बिकॉज आई हैव सीन माई मॉम डैड, उनका एक अच्छा वाला घर था. जब वो घर बेचा गया था पुराना वाला, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके भेजा गया था, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके बेचा गया था, मुझे पूरा याद है. तो घर को फिर से नया एक रिनोवेशन दिया गया था एंड लाइक इट वेंट ऑफ. तो कभी ना कभी मन में था कि शायद एक घर कभी ना कभी लेना है. एंड खुशी मतलब कुछ आई डोंट नो, वो अलग रोने वाली खुशी ये सब कभी हुई नहीं. हाँ, बट जब घर जब ईंट की थी तो हम लोग देखने गए थे. उसके बाद मेरे पापा ने बोला जब घर प्रतिष्ठा होगा ना, तो उस दिन हाउस वार्मिंग के दिन तुम जाके देखोगी कैसा है. मैंने ठीक है, ओके फाइन. जब गेट खुला, आई सॉ द मॉडलिंग एंड ऑल, फिर इंटीरियर्स एंड ऑल, सब कुछ होने के बाद आई वाज लाइक यार ये हमारा घर है. दैट वाज अ फीलिंग. Then I was really happy. I think that is the best moment in my life. You know, I remember that the place where you people used to stay on rent. हाँ. वहाँ गाड़ियाँ नहीं घुसती थी. नहीं घुसती थी. And बहुत दूर तक आंटी एंड आप चल के आओगे, गाड़ी पे बैठोगे, and you know you have to say कि वहाँ 10 मिनट वेट करो, हम आ रहे हैं, चल के आओगे, फिर then purchasing a home. You know, indirectly or directly, somehow your happiness gave us a proud moment in life. Okay, you see she has done this, and if she can do, everybody can do. Anybody can do. इसमें she ही का कोई बात ही नहीं है. Like I think आप करना चाहते हो, लोग बोलते यार ये है वो है, मैं डिप्रेशन में हूँ या डिप्रेशन में हूँ. आजकल ये नॉर्मल सी वर्ड हो गई है कि डिप्रेशन वाली. नथिंग इज़ डिप्रेशन. अगर आप करना चाहते हो कुछ चीज़ तो वो हासिल आराम से कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस मैन, एंड यू हैव टू डू द वर्क. राइट. Yeah. तो
व्हाट्स द न्यू थिंग दैट इज कमिंग अप? कुछ नया आपकी तरफ से, करियर हो या फिर पर्सनल हो, कुछ आ रहा है? Personal, I don't know anything about right now. Career, yeah, I am just switching. अभी मेरे 30 साल, अभी मैं 31 की हो गई हूँ, 31 I am. I am 31. Only lady who is accepting the real age. Oh my god. Because I am aging backwards ना, so that's why. शायद इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है, but anyways. So yeah, after एक 30 years में मैंने एक रियलाइज़ किया कि मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं. अभी 30 साल के बाद मुझे लग रहा है कि फाइनली आई एम डूइंग समथिंग फॉर मी. तो राइट नाउ आई एम गेटिंग गुड स्टफ्स, कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं. सिंगिंग तो हमेशा करती हूँ, लोग मुझे ऐसा सिंगर जानते हैं, परफॉर्मर जानते हैं, बट आई विल बी डूइंग सम म्यूज़िक वीडियोज़, लाइक गाऊँगी भी, एक्टिंग भी कर लूँगी, एंड सम शोज आई विल होस्ट, एंड ऐसे ही कुछ नया नया कुछ होने वाला है. सो होपफुली पीपल विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. एकदम, they will accept it. And another thing is कि that also you said me, आपकी एक्टिंग से मेरे को क्लिक किया कि you always wanted to become an actor. एक भूत चढ़ गई ये भी थी. एक चॉइस था. चॉइस था मतलब सब कुछ था लेकिन सिंगिंग नहीं था, और सिंगिंग नहीं हो था. गया. सिंगिंग वाज लाइक, बोली ना, कभी मैंने सोचा भी नहीं था आई विल बी अ सिंगर. यार मुझे एक डांसर बनना है, एक इंटरनेशनल डांसर बनना है, या एक अच्छी एक्ट्रेस बनना है. शक्ल नहीं थी वो अलग बात है, तब अभी मुझे पता चलेगा अपनी शक्ल कैसे बनानी है. दैट इज सरकास्टिक अगेन. सो या एक्टिंग, भाई हीरोइन किसको नहीं बनना है. तो उस टाइम पे जब मैं स्कूल एंड ऑल जाती थी तो उड़िया वाज नॉट दैट मच आई वाज इंटरेस्टेड. लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ बहुत हाइक पे थी, उड़िया एल्बम्स, वो म्यूज़िक वीडियोस. अभी वाली म्यूज़िक वीडियोस पूरा अलग है एंड उड़िया एल्बम्स अलग थे. तो मैं दूरदर्शन में हमेशा देखती थी. दीपा दी जो अभी मतलब कुछ दिन पहले ही शी वेंट फ्रॉम अस, बहुत दूर चली गई, बट आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हर. उनकी इतनी सारी एल्बम्स मैंने देखी. और मिठी दी, एंड मिठी दी लिप्सा दी शायद ना, लिप्सा ना, हम उनको मीठी दी जानते हैं. यू डोंट, हाँ, यू डोंट हैव दैट. बट बहुत सारे ऐसे हीरोइंस हैं जो एल्बम में एक्टिंग करती थी और मुझे उनके जैसे बनना था. एंड आई केम डाउन कटक, ये भी एक पता नहीं है, आई केम डाउन कटक पर बहुत सारी म्यूज़िक कंपनीज़ में अपना फ़ोटोज़ दिखाया, और बोले यार नहीं हो सकता तेरा, तो मैं वापस चली गई. तो ऐसा भी एक फेज़ था. सो या Okay, so like a crazy young girl who wanted to take chance in everything on the plate, Yeah. whatever is served. बस. But she was later on said खाना रख के कि बेटा ये तुम नहीं खा सकते, तुम कुछ और खाना है, and that was singing. बस. This is how it happened. If I say that. Right. Okay, now coming back to the things कि because we guys are from a field जो कि very quickly visible भी है और very quickly judge भी किया जाता है, बहुत जजमेंटल वाला फील्ड भी है हमारा. Yeah. और द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज कि बाहर के लोग हमारी ज़िंदगी नहीं जानते, वो जज करे तो अलग बात है, बट द पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी दे स्टार्ट पॉइंटिंग आउट क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और मैंने बहुत कुछ सुना है अपने बारे में भी, आपके बारे में, बहुत लोगों के बारे में जिसको हम जानते हैं. हाँ. नाउ टेल मी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इन सुनने वाली बातों में कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कानों तक पड़ी? वैसे आप तो किसी चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते, बट दैट हैज़ अफेक्टेड यू समहाउ. दैट डिडंट अफेक्टेड मी. कान तक पर ज़रूर पहुंची. 2-3, लाइक आई हैड रिलेशनशिप विद अ गाय हु इज़ वेरी क्लोज टू मी, जो कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है. बोले ओके फाइन देन. मैंने उसको भी बोला एंड वी लाफ्ड. दैट्स इट. हम कर सकते हैं वही, और कुछ नहीं कर सकते. और कुछ सुना होगा आपने, आप बोलो. नहीं, आप ही बताओ मुझे. नहीं, मैं ज़्यादा सुनी नहीं. क्या होता है कि लोग शायद मुझसे कुछ डरते भी हैं, मुझे कभी कभी लगता है, बिकॉज वो लोग मेरे मुंह के सामने कुछ बोलते नहीं हैं और मेरे सामने वो चीज़ जल्दी आती नहीं है. ये 1-2 चीज़ें हैं पर्सनल को लेके जो कि मैं सिर्फ हंस देती हूँ और कुछ नहीं. आई हैव हर्ड कि यू बेसिकली, आप अगर किसी से सुनते हो या फिर किसी का नाम सामने आता है कि इसने ऐसा बोला वाला जो चैप्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इग्नोर मार देते हैं. लेकिन मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन यू कि आप पूछ लेते हो डायरेक्टली. एंड व्हाई डू यू डू दैट? क्यों, मतलब इसके पीछे कुछ रीज़न है या फिर लाइक आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी ट्रांसपेरेंट. दैट्स इट. लाइक मुझे अपना आंसर चाहिए. हाँ कि नहीं, बोलो, बोला है
एंड या इन ये जो अभी मैंने किस्सा बोला था उसी चीज़ से मुझे कुछ सुनने को मिला था, एंड मुझे एक से नहीं बहुत सारे से सुनने को मिला। तो आई आस्क दैट पर्सन कि बोला क्या आपने? बोल नहीं, ठीक है, अगर बोला है तो समझ लो दिस नॉट गुड, अगर नहीं बोला है तो चिल मार, दैट्स इट। Cool. ऐसे ही कुछ। So चलिए, ये तो एक था जो कि आपके दोस्त हैं, जिनके बारे में आई नो द पर्सन। ऐसे एक नहीं, मैं 2-3 तो और भी सुनी हूँ मैं, लेनी वेस्ट छोड़ो। हाँ, एक परफॉर्मर के साथ, एक बहुत अच्छे सिंगर के साथ, मतलब दुनिया भर है, इसीलिए मैं सिंगल बैठी हूँ आज तक। ओके, सो नाउ ये जो 15 साल में, हाँ, आपके हिसाब से ये तो ऐसे फेक नेम्स थे जिनके बारे में हवा उड़ाई गई और बोला गया, आपने कौन से ऐसे रियल नेम्स हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ यू वेर फ्रॉम योर साइड इनटू अ रिलेशनशिप? शायद ये क्वेश्चन मुझे थोड़ी देर पहले पीछे पूछ रही थी। राइट। 2 relationships were there, like the major ones, और both were very, I thought कि कुछ ना कुछ हो पाएगा, दोनों से कुछ नहीं हुआ, तो I went off, I dumped them. Now that was a long gap, I guess, क्योंकि Yeah. हम ये थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। ये पहला वाला कब हुआ था और दूसरा वाला कब हुआ? पहला वाला, माय गॉड, पहला वाला मेरा हुआ था टीनेज लव, पहला प्यार था मेरा। Okay. सो या, एंड ये 3 साल का रिलेशनशिप था, एंड इट वाज रियली सीरियस वन, एंड बहुत कुछ आगे सोच रखा था, बट ये था, आई थिंक आई वाज इन 12th तब, व्हेन आई वाज डांसिंग, एंड ही वाज अ डांसर आल्सो, सो या तब था, एंड मेरे मॉम डैड को उतना पसंद नहीं था, बट यू नो प्यार में पागल हर कोई होता है, तो हम भी हो गए थे। दैट वाज अ टाइम, देन वो हो गया, एंड अभी रिसेंटली एक था, लाइक यू नो वेरी वेल, इतना क्यों पूछ रहे हो? I have to ask you all of these questions because you know these बाद में मेरे मॉम डैड मुझे मार न डाले, ये अलग बात है ना। नहीं, वैसा नहीं होगा, आई नो, क्योंकि दोनों ही वैसे लोग हैं, और कैम सामने भी जो बैठे वो लोग भी ऐसे लोग हैं जो अपने हैं। हाँ। सो एनीवेज, ये जो दूसरा वाला था, ये फेज आपके लिए बहुत डार्क था, बहुत ही ज़्यादा। एंड पोस्ट द एंटायर फेज नव्या जेती 2.0 केम आउट। ठीक है, मैं तो बोली 5.0, 2.0 कहाँ से आ गया? या वर्जन 2 आई मीन टू से। ओके, तो ये कितने दिन का ड्यूरेशन था? मतलब रिलेशनशिप, राइट। दिस रिलेशनशिप बोला जाए तो 4 years का था, लेकिन 1 साल मैंने जानने के लिए लगा दिया। लाइक आई वॉन्टेड टू नो दैट पर्सन वेरी वेल, बिकॉज आई वॉज इन टू अ बैड रिलेशनशिप, पहला वाला, जिसमें आई वॉज लाइक मुट्ठी में कर डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप था लड़के की तरफ से। तो आई हैड टू लीव हिम बिकॉज मुझे बहुत कुछ करना था लाइफ में, तो वो अलग चीज़ है, तो मैं वो रिपीट नहीं होना चाहती थी, बिकॉज अभी 4 साल मतलब समझो आई वॉज ऑलरेडी एक सेटअप कर दिया था। आई वॉज डूइंग, आई हैव डन अ शो एंड एज अ मेंटर जज एंड शोज करती थी, लोग जानते हैं मुझे, पब्लिक फिगर, तो मुझे फट से किसी पे ऐसे ही दिल नहीं फेंकना था, तो मुझे जानना था उस इंसान को। तो आई थिंक मुझे 1 साल के आसपास तो लग ही गया जानने में, एंड देन 4 साल का रिलेशनशिप था, बट दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। शुरुआती से ही आई इन्वॉल्व माई फैमिली इन द सेंस माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर एंड ऑल, एंड उनके भी घर वाले जानते होंगे। तो आई डोंट वॉन्टेड कि ये एक ऐसा टाइम पास वाला, ये आई नेवर, बाय द वे आई एम नॉट अ पर्सन, मुझे फ्लिक्स ये वो पसंद ही नहीं थे। वो हर कोई लड़की बोलती है, लड़का बोलता है, बट एक्चुअली आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट वो बोलने में। एंड ये जो 4 साल के रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स एट द एंड वी थॉट वी विल बी गेटिंग मैरिड दिस ईयर, प्लान्स तो थे। एंड आई गेस मैं तो 2 साल के बाद ही सुन रही थी कि यू वर गेटिंग, यू, हाँ, प्लान तो वही था, बट वहाँ से थोड़ी डिलेस हो रही थी, एंड शायद वो शादी के टॉपिक से ही इट स्टार्टेड, एंड लॉट्स ऑफ थिंग हैपेंड, एंड मैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के दौरान, क्योंकि लाइक अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मेरी एज बढ़ रही थी, तो इस एज तक मुझे शादी करना है, तो मुझे और कुछ नहीं, वो उनके फैमिली में जो भी बोला जाए मैं करती थी। आई वॉज लाइक, आई नेवर शोड देम माई सेलिब्रिटी वाला जो एक फेज़ होता है, या मैं उनको कभी जताई नहीं कि आई हैव अ नेम, आई हैव अ फॉलोइंग, आई हैव अ फैंस, या जो भी बोलो। तो आई वॉज लाइक अ नॉर्मल गर्ल विद दैम, अगर मैं बोलूँ तो।
ऐसे करते करते ये 4 साल में क्या हो गया, दे टुक मी सो मच ग्रांटेड कि एक फेज़ आया कि मुझे वहाँ पर समझ में आ गया था कि राइट नाउ इट्स माई टाइम। मुझे अगर इस टाइम पे मैं अगर कंट्रोल नहीं करूँगी अपनी जो फीलिंग्स एंड मैं एक स्टेप नहीं लूँगी तो शायद मुझे ही और मेरे फैमिली के लिए ये भारी पड़ेगा। तो या दैट वॉज अ वेरी डार्क थिंग। ये जो 3-4 महीने में जब ये सब चल रहा था, आई वाज लाइक इट वाज वियर्ड, बट इसमें इस 3-4 महीने में मेरे फैमिली ने मेरा साथ दिया, मेरे क्लोज्ड वंस ने भी साथ दिया। इवन आई टॉक टू यू ऑल्सो, मैंने बोला था अभी कुछ थिंग्स आर नॉट गेटिंग राइट। तो या एट वन टाइम बट माई फैमिली सेड द वन थिंग, अगर तुमको ठीक लग रहा है तुम आगे बढ़ो, नहीं लग रहा है तो दिस इज अप टू यू। That was really. When was the exact phase? Because you were madly in love with the person. Actually. And I know the things and all. Yeah. क्योंकि आप like काफ़ी जाना आना था, and in fact madly in love is one thing and madly in love with the family also is another thing. क्योंकि right. शादी वाली बात थी यहाँ पे। तो आपको कब ये रियलाइज़ होने लगा कि चीज़ें यहाँ से गलत हो रही हैं? And when did you एक्चुअली थॉट कि पहले भी गलत होती थी लेकिन उसको मैंने कंसिडर नहीं किया और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब सारी बातें रिकॉल हो रही है कि यहाँ पे गलत हो चुकी है? हाँ, आई थिंक शुरुआत से ही बहुत सारी जगह थे जहाँ पर मेरे मॉम डैड को भी थोड़ा कुछ बोला गया था, लाइक उनको डायरेक्टली नहीं बट मुझे बोला गया था। मैंने तब कैसे, आई डोंट नो, आई क्राइड दैट डे एंड आई सेड हिम कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ही वाज लाइक हम लोग ठीक कर देंगे इन सबको। तो ऐसे एक नहीं मल्टीपल ओकेशंस हुए जहाँ पर गलती किसी की भी हो, बोला हमें गया था एंड मुझे, मेरे फैमिली को, दिस दैट एंड ऑल। तो आई डोंट नो, बीच में एक छोटी छोटी एक बातें एक होती है ना कि बोलते ना कि वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक। तो कुछ ऐसे ऐसे किस्से होते थे जिसमें आई यूज्ड टू लिसन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट गाय। कि एक किस्सा ऐसे ही, मतलब नॉर्मली बता देना चाहूँगी, अगर एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, मैंने उनको एज ए नॉर्मली गर्ल मैंने अपनापन दिखाया। एज यू सेड, आई वॉज मैडली इन लव विद द फैमिली ऑल्सो। आई गिव माई होल हार्ट टू दैम। लाइक मेरे शोज़, मेरे रिकॉर्डिंग सब कुछ कैंसिल करके उनका फैमिली फंक्शंस हो या 4 दिन 5 दिन पहले जाना एज अ फैमिली मेम्बर, लाइक इतना ज़्यादा हो गया था। एब्सोल्युटली दे वर। एंड एक टाइम पे यू नो थिंग्स वर गेटिंग रॉन्ग, धीरे धीरे पता चल रहा था मुझे। एंड व्हेन दैट गाय स्टार्टेड इग्नोरिंग, एंड वहाँ पर कुछ मुझे अजीब सा लगने लगा था। मैं रो रही थी, आई वॉज वर्किंग एंड मैं किसी को जता नहीं रही थी एंड आई वॉज ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड। वो एक अलग चीज़ थी, बट या शायद वही चीज़ मुझे स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं दे दिया। एंड द पीपल हु सेड कि से एक्चुअली वो लोग मुझे बताए कि तुम एक्चुअली हो क्या, तुम हो क्या, एंड वॉट आर यू एक्चुअली डूइंग फॉर देम, दे आर नॉट डिजर्विंग यू, तुम्हारी एक अलग लेवल है। तो शायद ये धीरे धीरे बातें मुझे समझने आने लगी। आई थिंक 6 months मुझे लगा इन सब से बाहर निकलने में, एंड फाइनली 1 month लगा मुझे डिसीजन लेने में। उसके बाद मैं अपने घर वालों को बताई। देन माई डैड वॉज द पर्सन सेड कि येस, इफ यू आर लाइकिंग दैट, यू वॉन्ट टू डू इट, एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट। क्या होता है कि फैमिलीज़ जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो स्पेशली एज अ मॉम डैड, उनका यही रहता है कि हम पैचअप करा देते हैं। बिकॉज एक 30 होने के बाद या एक एज पे आने के बाद, लोग जानने के बाद अगर एक रिश्ता टूटता है तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सो स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी वही था, बट लेटर ऑन उनको भी पता चला कि व्हाट आई एम, एंड उनकी बेटी ने क्या एक्वायर किया इन सब में, एंड शी इज़ नॉट डिजर्विंग ऑल दिस, राइट। तो वो स्ट्रेंथ मुझे आगे लेके चली गई और बहुत मुश्किल था उससे निकलना सही में, बट या निकल गया यार, आई डोंट नो। एंड दैट वहाँ से निकलने के बाद आई अंडरस्टूड मैं कितनी दबी हुई थी उस रिलेशनशिप में हो, या ये 30 साल से कितनी दबी हुई थी वो भी मुझे पता चल गया। एंड आई एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक अ बटरफ्लाई राइट नाउ कि शायद या आई एम लिविंग माई लाइफ, एंड एज आई सेड कि अभी मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। आई नो माई लिमिट्स, आई नो आई वॉट टू डू, आई नो वॉट मेक्स मी हैप्पी, एंड आई एम ग्लैड आई गॉट अ फैमिली जो मेरे हर बात पे मेरे साथ देती है। That for sure, like we should see that. Yeah.
you have got an amazing family with you as a support pillar. वो बोलते हैं 4 स्तंभ, आपके भी फैमिली में भी 4 स्तंभ है, आपके भैया भाभी मम्मी पापा. एंड इसके बाद आई वेंट सम लाइव्स और ये रिलेशनशिप के बारे में मैंने कहीं बोला था 1-2 बार, तो मुझे 4-5 मैसेजेस आए कुछ लड़कियों से स्पेशली. वो डिप्रेशन में थी एंड उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है एंड दे लाइक दी हम नहीं निकल पा रहे हैं एंड वी वांट, हमको कैसे होगा. तो मुझे लगा कि सी, अगर मैं ज्ञान देना नहीं चाहती बट मैं अपनी आप बीती जो है मैं उनको कुछ शेयर करूं तो शायद वो भी निकल पाए. आई एम ग्लैड मैं उनके साथ 2-3 के साथ बात की, आई मीन चैट्स की एंड ऑल, एंड दे आर लीडिंग हैप्पीली अ सिंगल लाइफ राइट नाउ एंड दे आर लाइक दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड आई थिंक दैट इज हैप्पीनेस. Okay, tell me, just because we all are into a profession where we are very much known to the society sees us as an example. So does that become very easy for the male part, or maybe अगर भी लड़के भी हैं तो भी फीमेल के लिए, जो भी आपके पार्टनर है, आई वोंट लाइक स्पेसिफिकली से मेल और फीमेल, जो भी पार्टनर है उनके लिए क्या ये बहुत आसान हो जाता है कि जस्ट बिकॉज वो नोन है ना, तो इसको अगर तो हम आधे में छोड़ के भी चले जाएं तो ये तो कभी पब्लिकली पोस्ट करने वाली नहीं है, कुछ बोलने वाली नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो लिखेगी तो दूसरे दिन मैसेज आ जाएगा, अरे ऐसा डिप्रेशन वाला मैसेज क्यों डाल रहे हो यार, हटा दो एंड ऑल. बट बात है कि हमें ह्यूमन बीइंग की तरह क्यों नहीं देखा जाता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? Because we are artists and we entertain people and they think entertainment हम पूरी तरह से देते हैं उनको और वो अपना जो entertainment हम पे थोपते हैं. मुझे लगता है कभी कभी, but not everyone as you know. So yeah, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो जाए. मैं कभी एक बार शायद मैं ऐसे ही कभी पोस्ट करती नहीं हूँ, बट हाँ व्हाट्सअप पे करती हूँ. कभी मुझे एक बार कुछ लगा तो आई पोस्ट समथिंग जो कि लॉजिकल होता है, नॉट इलॉजिकल वाले. तो बोलते हैं कि क्यों ऐसा, आपने तो इतना सब कुछ देखा है. यार भाई, हम इंसान हैं, वो भी एक चीज़ होती है. एंड समटाइम्स हम जितना भी कंट्रोल करें या स्ट्रॉन्ग बने, एक टाइम आ ही जाता है जब वी ब्रेक डाउन. एंड ये भी इन सब में मुझे पता चल गया कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है. यू आर द ओनली, योर मॉम डैड या आपके क्लोज्ड वंस भी नहीं बोलूँगी, छोड़ो, आपके मॉम डैड, आपके भाई बहन जो हैं वही आपके साथ रहते हैं. तो अगर उस टाइम पे अगर आपके मन में कुछ चल रहा है या फीलिंग बैड या समथिंग, शुड स्पीक अप टू देम, दैट्स इट. वो लोग ही आपको बोलेंगे, वो लोग तो जज नहीं करेंगे ना एनीवेज. तो आई थिंक दैट्स इट. एंड ये जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ मैंने बोली है, ये सरकास्टिक सुनाई दिया होगा, लेकिन ये सही है. एंड या परफेक्टली सेड, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं लोग हमें समझ लेते हैं कि सिंस वी आर इनटू अ फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वी ओनली स्माइल एंड शो देम व्हाट वी आर, सो वी आर supposed to smile every time, and we cannot cry and we cannot have any kind of issues with ourselves. Okay, so the post so long, whatever you have seen in your life and whatever you have gone through and whatever you have made yourself today, so what do you think is the few elements which has kept you going? किस चीज़ की वजह से आप इतना लंबा टिक पाए, क्योंकि इतना लंबा टिक पाना भी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है. भाई अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ करना बाकी है. टिक पाना मतलब आई एम एजिंग बैकवर्ड्स, तो मुझे थोड़ा हीरोइन वीरोइन वाले वाइब्स भी आ रहे हैं आजकल. तो एनीवेज आई थिंक मानो या ना मानो, फैमिली सपोर्ट इज़ द फर्स्ट वन. मेंटली तो ज़्यादा रहता है, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ भी चलता है, मैं अपने, अगर वो बात मैं हर चीज़ मॉम डैड को नहीं बता सकती मैं, बट मैं अपने भाई को बता सकते हैं. सो आई टेल माई ब्रदर, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बताता है, लाइक आंसर करता है. कुछ चीज़ें मैं अपने मॉम डैड को बता सकती हूँ, मेरे भाई को नहीं बता सकती. एंड इन सब के बीच वन पर्सन हैज़ अ वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि मतलब बहुत पुराने दोस्त होंगे. ऐसे 2 दोस्त हैं, उनको बता देती हूँ, तो दे गिव मी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स. और ऊपर से पहले तो मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, लेकिन आजकल मैं ऐसे दिखती हूँ. आजकल मैं डिप्रेशन नहीं रहती हूँ. एंड शायद इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार. प्रोफेशनली देखा जाए तो यू नो वेरी वेल, प्रोफेशनली अगर टिक पाना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन वर्क, अप टू डेट विद द वर्क. एंड इन हमारे ये में
financially, I know about you and me. Financially you should take the stand कि लोग आपको upgraded होते हुए भी people can afford you, you know, and you can give that work. Yeah, you came across a very good point. This is one thing that I wanted to talk, लेकिन थोड़ा बाद में, but चलो अभी पूछ लेते हैं. हाँ पूछ लीजिए. Because आपने बहुत अच्छा एक point बोला and consistency में ये भी बहुत मैटर करता है. This is what we both have learned and there are few other artists जो भी ये चीज़ समझते हैं. Like इतना कुछ करने के बाद भी you are not too demanding. No. Right, too demanding in terms of financial aspects I'm talking, not about the other things that is required in the show. And I have my reasons, we have talked about this, but I really want to like you to answer this on camera. Why did not you became very demanding in the entire course of your 13 years of career? अच्छा, because from the starting only, अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बोलूँ तो मैंने फेजेस वैसे ही देखा है. लाइक मैंने 50 से शुरुआत किया, फिर 300 हुए, फिर 400 हुए, फिर 500 हुए, देन 800 हुए, 1000 हुए, 1500, ऐसे ऐसे करके मतलब बढ़े. तो मेरा ऑलरेडी माइंडसेट वही से शुरू हो गया था शायद. एंड अगेन बाद में मुझे ये पता चला कि आउटसाइड वर्क के लिए आई डिमांड, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट वो डिमांड भी मेरा मिनिमल ही रहता है. बिकॉज मुझे लगता है लॉन्ग रन में काम करने के लिए यू शुड बी गुड इनफ इन फिनेंशियल थिंग. वो मेरी चॉइस है, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ. एंड शायद वो एक फैक्टर हो सकता है कि आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग फ्रॉम 13 years एंड आई विल बी. As I said, it's just my choice of thing and I keep myself updated. वो एक चीज़ है. और ऐसा नहीं कि मैं नहीं बढ़ाती, I do it, but not फट से कि मुझे 50,000 चाहिए, नहीं. आई नो कि ये करने से, इतना बढ़ाने से लाइक दे विल रिस्पॉन्ड एंड दे विल से या ऑफ कोर्स यार तुम तो और भी डिज़र्व करती हो. ये मैंने बहुत सुनने को मिला कि यू डिज़र्व अ लॉट, देन व्हाई दिस. तो एंड आई एम नॉट अ पर्सन इज़ लाइक इसको इतना बोला है उसको 50 बोलती हूँ, अरे उसको 70 बोलती हूँ. नहीं, इन माई होल कैरियर ऑफ टाइम आप किसी को भी पूछ सकते हो. ऑर्केस्ट्रा से लेके अभी तक मैं किसी को 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं बोली हूँ. मैं अपना पेमेंट स्टेगनेंट रखती हूँ, एक सिंपल वे में रखती हूँ. आई वॉन्ट टू वर्क इन लॉन्ग रन, आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, आई वॉन्ट टू जस्ट वर्क इन माई होल लाइफ, दैट्स इट. मेरा एक ही पॉइंट है, मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है. आई लव माई वर्क. Okay, so someone who loves her work so much. Yeah, of course, we should love our work. Even you do that, na? Yeah, Like. I do that. Okay, so अभी मेरे को लग रहा है मेरा भी थोड़ा इंटरव्यू. हाँ, right है. Okay, so coming back to the segment of currently the age that you are going through, 31 years, 31. which you have already Just completed 31. दो वो रिवर्स जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ने वाली है, तो वो यहीं पे स्टैग्नेंट रहेंगी या फिर 30 हो जाएंगी 1 साल के बाद. ओके, आर यू सीइंग समवन या फिर ऐसा कुछ नहीं है या फिर आपको क्या लग रहा है मैं आई एम सीइंग समवन? आई कांट से दैट, यू हैव टू से इट. नो, नॉट एट ऑल. राइट नाउ मेरा वो फोकस नहीं, मतलब ऐसा इंसान मिला ही नहीं है. मिलेगा तो ऑफकोर्स आई लुक इनटू दैट. लोग बोलते हैं कि यार मतलब प्यार जाने के बाद मुझे और नहीं करना है, ये करना है, मैं सिंगल रह जाऊँगा. नो, नथिंग लाइक दैट. राइट नाउ द थिंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी इज़ मैरिज. अगर मुझे उस किस्म का अंडरस्टैंडिंग वाला एक बंदा मिला विथ समवॉट गुड लुक्स, आई एम ओके विद इट. बट इस साल का तो रहने ही दो. Right now my focus is on I have to resume my work and I have to do some good stuff in my work, and because people are taking me as a motivation from to 2019, so मैं उस चीज़ को कैसे पीछे हटा सकती हूँ. तो I want to work on myself. उसके बाद कोई आता है तो देखता है. Okay. So the thing, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक जो चीज़ होता है, ये जो पैरामीटर की हम बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वी आर इनटू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड. ओके, सो डू यू रियली थिंक दैट दिस एज इज़ समथिंग दैट शुड बी टॉक्ड अबाउट एवरी टाइम कि अब आप इस साल में हो गए ना, अब जैसे मेरे लिए तो शायद 20 साल से ही देखा जाना क्योंकि मैं बिहारी हूँ भाई. हाँ, मैं प्राउडली कहती हूँ ये चीज़, बिहारी हूँ, लेकिन दूसरा सेंटेंस प्राउडली नहीं कहती. अब बताओ, मतलब उस एज में जहाँ पे आपको अपनी दिन दुनिया का पता नहीं है, क्या पहनना है ढंग से वो पता नहीं है, आपके लिए लड़का देखा जा रहा है, तो अभी आप बताओ कि ये जो पैरामीटर है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इतने में शादी करना है, इज इट जस्टिफाइड?
इज इट नॉट दैट भी कि हमारा चॉइस पे डिपेंड होना चाहिए कि कब हमें लगता है कि हम सामने वाले को एक हैप्पी रिलेशनशिप दे सकते हैं? आई थिंक इट्स लाइक ऑफ योर चॉइस, इट्स अ पर्सनल चॉइस. अगर बोला जाए तो सोसाइटी के हिसाब से, एज यू सेड, मैं तेलुगु हूँ तो हमारे में तो 25 और 24 में गर्ल्स गेट मैरिड. लाइक लुक एट मी, मैं तो रहने दो, इतने बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं है एज. एंड हाँ, मुझे अभी इस एज पे आने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, आई डोंट थिंक इट्स एनीवेज ऑन सोसाइटी राइट नाउ या ऑन पीपल राइट नाउ. बिकॉज आजकल, पहले एक ज़माना था, अब एक ज़माना अलग है. अभी बोथ गर्ल्स, बोथ वुमेन एंड मैन आर वर्किंग एंड इक्वली सब कुछ चल रहा है. एंड जब लड़कों को वो एक फ्रीडम मिल रहा है कि उनकी, जब वो माइंडसेट करते हैं एंड दे गेट मैरिड, देन द गर्ल्स ऑल्सो हैव. मैं अपना ले लूँ या आपका ले लूँ तो एक ही चीज़ है कि वी आर फैमिली. आई मीन आवर पेरेंट्स आर नॉट लाइक पुशिंग अस टू गेट मैरिड. एंड हाँ, वो टॉपिक उठता है, ये सही बात है, बट उनके मन में भी एक है कि जब वो मेंटली प्रिपेयर होगी एंड सही लड़का अगर टाइम पे मिलेगा, जब भी मिलेगा, तो यू विल गेट मैरिड. तो मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट आ चॉइस, नॉट अबाउट एन एज. अगर अरे यार 30 की हो गई तो मुझे शादी करना है, बट आई हैव सीन पीपल की 25 की होगी तो शादी करना. आई हैव सीन सम ऑफ माई फ्रेंड्स. थोड़ा मुझे देख के अजीब सा लगता है एंड एक घुटन सी होती है कि हाउ कम ये कैसे हो सकता है, बट दे आर लिविंग देयर लाइफ. बट अगेन दैट्स देयर चॉइस, इट्स माई चॉइस, इट्स योर चॉइस, सो इट्स अपॉन चॉइस. एंड आई थिंक राइट नाउ की सिचुएशन के हिसाब से एज डजंट मैटर एंड चॉइस मैटर्स. Choice that matters. Choice that matters. That's the show's name, and that's why probably we kept this thing. So yeah, few more things that I. और भी हैं? Few, अच्छा. very few. A couple of questions more, I guess. Okay. So, the industry that you are working in, okay, and I have heard, in fact, we both have discussed on these things as well. Ki, why Navya Jayati is not seen more into films, and why only in like stage shows and all? You are very very good at that, of course, but again, कभी तो मन होता होगा ना कि आपको भी उतना काम मिले. हाँ, ऑफ कोर्स. वो क्यों? एंड एक टाइम पे मैं करती थी, व्हेन आई वाज न्यू इनटू द प्रोफेशन एंड न्यू. हाँ, जब आई वाज कंटिन्यूसली सिंगिंग इन मूवीज, बट तब सोशल मीडिया इतनी हाइपर नहीं थी, लाइक इतनी ऊपर नहीं थी. अभी क्या है, एक हर एक गाने के आप यूट्यूब में गाना देख सकते हो, इसका ये वर्जन है, स्टूडियो वर्जन है, दैट वर्जन है. कुछ नहीं था तब. अगर बोला जाए, आई हैव sang इन लाइक 30 मूवीज़. 30 मूवी में गाई हूँ मैं. दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. एंड और एक बात है, पीपल लव मी एज अ परफॉर्मर, सिंगर. परफॉर्मर बोलते हैं लोग, बोलते हैं यार, इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हो. मैंने सुना है ऐसे किस्से कि एक किसी ने मुझे मुंह पे भी बोला था कि 2 किस्से मैं बताती हूँ. चलो, एक किसी सिंगर ने मुझे बोला था कि यू आर अ वेरी नाइस परफॉर्मर, लाइक नो वन कैन टच यू एंड यू आर द बेस्ट. सिंगर अच्छी हो ये मैं नहीं बता रही हूँ, बट परफॉर्मर. बोला हाँ, ऑफ कोर्स आई एम अ गुड परफॉर्मर. तो उनको मुँह पे बोले, या पीपल पे मी फॉर दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ परफॉर्मर एंड पीपल कॉल मी फॉर माई परफॉर्मेंस. द एंड ऑफ द डे मैं नचाती हूँ यार. मैं और किसी ने मुझे बोला कि चिल्लाने के लिए तुम गाती नहीं, चिल्लाती हो. तो वहीं पर भी मेरा आंसर वही था, यार चलो चिल्लाने के लिए आई गेट पेड. वही चिल्लाती हूँ तो लोग डांस करते हैं, और क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट तो वहीं पर तो है. आपके चिल्लाने में भी सुर है? सुर है. क्या बात है, कौन ऐसे सुर लाते हैं. तो हाँ, उसके बाद सिंगिंग वाली, प्लेबैक वाली बात आती है. आई हैव सीन एक्चुअली 3 फेजेस इन माई इंडस्ट्री में जब से आई हूँ इंडस्ट्री का. एक, जब आई वर्कड विद बीबू भाई, तपूदी एंड ऑल, जब वो लोग पूरे फ्लो में थे, एंड आई लव देयर सिंगिंग एंड देयर एक्चुअली जेम्स. उनके जैसा सिंगिंग आई डोंट नो, सबके सब इतने अच्छे हैं. उसके बाद एक फेज़ आया जब बाहर के सिंगर्स आके गाते थे, लाइक मुंबई आर्टिस्ट ना, वो एक फेज़ देखा. तब कोई यहाँ के गाते भी नहीं थे, सबको रिजेक्ट कर दिया जाता था. थर्ड, आई वाज सिंगिंग दैट टाइम ऑल्सो. थर्ड, अभी जब ऑल आवर फ्रेंड्स यंगस्टर्स एंड ऑल गा रहे हैं, ओके, बट अभी के सिनेरियो मुझे थोड़ा अलग लगता है. क्या है, कभी टैलेंट मैटर करता है, कभी टैलेंट मैटर नहीं करता, मुझे लगता है. दैट इज़ माई
टेक ऑन दिस। और मैं जब गाती थी तो मेरे सिंगिंग की वजह से या मेरे वॉइस क्वालिटी की वजह से वो लोग बुला के गाने देते थे। ओके फाइन, आई वाज सिंगिंग। उसके बाद धीरे जब फेज़ बॉम्बे का चल रहा था तो आई वाज ऑफ कोर्स, तो एक बस धीरे धीरे चलता था, बट अगेन उस टाइम पे भी इतना हाइपर नहीं था सोशल मीडिया। फिर अभी आया तो मैं पहले से मुझे आइटम नंबर्स ज़्यादा देते थे, सो आई वॉज कंटिन्यूइंग विद दैट। एक होता है ना कि आप आइटम नंबर से शुरुआत की हो तो आइटम नंबर पे ही आप अटके हो। ये तो सुनिधि चौहान के साथ भी हुआ था एक टाइम पे। देन व्हेन शी गॉट द ब्रेक ऑफ दैट सॉन्ग मेरी ज़िंदगी में, वहाँ से उनका लाइफ चेंज हुआ एंड पीपल, उनको समझ में आया कि नहीं, दिस गर्ल, दिस वुमन, दिस सिंगर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वर्सटाइल। तो यहाँ पर शायद मुझे वो मौका अभी तक मिला नहीं है। उनको अभी तक लग रहा है कि आई एम एन आइटम नंबर एंड धड़कता भड़कता गाना ना। जब भी मैं फ़ोन कॉल आई गेट इट, एक होता है कि यही बोलते हैं कि मैडम गोटे गीतटा अच्छी, ओडिया में बोल सकते हो, गोटे गीतटा अच्छी एंड आपन को सुनिधि चौहान वाला गाइबार अच्छी, पूरा डांस वाला, या आपन को नेहा कक्कर वाला गाइबार अच्छी, पूरा मैंने डांस वाला। तो मैं वहीं पे बोलता हूँ आप मुझे लिरिक्स भेज दो, बिकॉज एट वन टाइम आइटम नंबर गा के मुझे एक टाइम पे लगा कि नहीं, मुझे अभी हर किस्म के गाने गाने चाहिए। देन मुझे नहीं मिला तो आई रिजेक्टेड सॉन्ग्स, दैट वाज द वन थिंग। देन उसके बाद जो भी मुझे कॉल करता था फॉर सॉन्ग्स एंड ऑल, आई आस्क्ड देम फॉर द लिरिक्स, जो कि सिंगर्स करते हैं, एक्चुअली करते हैं लिरिक्स एंड ये वो। एंड मुझे ये सुनने को मिला कि तुम्हें तो यू आर जस्ट अ नॉर्मल वन, तुम्हें कौन लिरिक्स मांगुच एमती। एंड अनदर टाइम आई गॉट सॉन्ग्स फॉर आइटम नंबर्स। मुझे पूरा याद है, मैं एक इंसान से बात कर रही थी एंड ही वाज लाइक आप एक आइटम गीत अच्छी एंड यू हैव टू सिंग। आई सेड आई डोंट सिंग आइटम नंबर्स एनी मोर, आपण को वॉइस को कौन सूट हम कि? आई वाज लाइक हेलो, बोले मैं समझी नहीं थोड़ी ना रोमांटिक गीत आपको दे दो, आपको वॉइसटा पूरा मोटा वॉइस। आई डोंट नो व्हाट इज मोटा वॉइस, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मोटा वॉइस, दैट टर्म इज लाइक डिफरेंट। तो एनीवेज दैट वाज अ वन थिंग। एंड कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से शायद किसी को कॉल नहीं करती, काम मांगती नहीं हूँ, शायद वो भी एक थिंग है। आई एम वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड इगोइस्टिक पर्सन इफ पीपल थिंक अबाउट दैट, बट आई एम ए वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव वुमन, सिंगर या जो भी बोल सकते हो। आई डोंट लाइक पीपल लाइक मी आस्किंग फॉर वर्क, ये वो एंड ऑल। ठीक लगता है इफ़ दे कॉल मी, इफ़ दे नो दे रिस्पेक्ट माई वर्क, देन आई विल गेट द वर्क। मुझे जाके बोला नहीं है कि मुझे गाना चाहिए, ये करना है, शायद मैं वो करती नहीं हूँ, शायद क्या मैं नहीं करती। दैट इज़ द मेन पर्सपेक्टिव अभी के हिसाब से, दैट इज़ द मेन थिंग। आई एम नॉट गेटिंग सॉन्ग्स, बट फाइनली आई थिंक It doesn't even matter, right? हाँ, वो भी एक चीज़ है कि इट डजंट इवन मैटर। वही तो आई डोंट गिव अ डैम वाली एक जो चीज़ होती है ना, आई डोंट केयर अबाउट इट। Jyoti has a profile which most of the singer would want to have, but they cannot have the kind of profile that you have, because the number of shows and number of places that you go is not Anyways, in favor of everybody. हाँ, I think I am the only singer। पता नहीं, मुझे एक इंटरव्यू में ये बोला गया था कि मैडम आप ना एक ऐसे सिंगर हो जो प्लेबैक तो किए नहीं हो काफ़ी, बिकॉज लोगों को उतना पता नहीं है। प्लेबैक ना करते हुए भी शोज़ करते हुए आप सेलिब्रिटी बन गए। बोला हाँ, I'm the one. So that's called the self-made celebrity. Yeah, so I'm happy about that and अच्छा लगता है यार, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं आईने में खुद को देख के बोलती हूँ यार मैंने आज तक काम नहीं मांगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद के पैरों पे खड़ी रहती हूँ, अपने पैरों पे देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, खुश हो जाती हूँ। Now think of the phase when you thought first कि भाई डांसर से सिंगर बनना है, और आज के डेट में with the maximum number of shows in our industry, if somebody has as a singer, as a performer, then it's you. And people love matters a lot. मतलब the way हमारे हाँ दे एक्सेप्टेंस एंड द उन्होंने इतना अच्छे से वेलकम किया। बीइंग अ तेलुगु, वो एक बोलते हैं हमेशा यार तेलुगु उड़िया इंडस्ट्री केमती आसिलो है ना, बट आई नेवर थॉट, या सो आई नेवर थॉट एनीथिंग हैपेंड इन माई लाइफ फॉर दैट। पीपल वेलकम मी होल हार्टेडली। अगर मैं बाहर भी शो करने जाती हूँ एंड ऑल, तो ऑफकोर्स आई से आई एम फ्रॉम उड़ीसा मैन। उड़िया ओके उड़िया, वो लोग तो सोचते भी नहीं कि उड़ीसा में आर्टिस्ट्स आर देयर, बट उनको आके देखना चाहिए, लाइक वी हैव द
No, Best artist. this recently happened with me. I went down for a show in a different state, Oh. and they were like, there was just one artist वाला show. बहुत होता होगा आपके साथ भी one artist. आप तो कितना single woman बहुत, show बहुत, करते हो. तो what they said me first was कि ना, अरे उड़ीसा से आई है, पता नहीं इसका हिंदी कैसा होगा, इंग्लिश कैसा होगा. तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे. तो मैं शो से पहले ज़्यादा बात नहीं करती. तो जब शो के टाइम पे when I started saying and I did the show, after the entire show they are saying like, we did not expect this, we are very sorry. ये पुरानी बात हो गई है, बहुत पुरानी बात हो गई है. मतलब when I especially go to South, तेलुगु shows and all जब करती हूँ, they're like, how come you can sing Telugu, Hindi, everything. यार I'm a Telugu, I live in Odisha, but यार जो भी हो, whatever I have in my life because of the love people showering me, मैं हमेशा बोलती हूँ 13 साल मैंने ख़त्म कर दिए. और मैंने ये जब पोस्ट किया कि 13 years हो गए हैं, तो पीपल कमेंटेड लाइक, मैडम ये तो शुरुआत है, आपको और आगे बढ़ना है. तो दैट इज़ लव एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड, यू नो. राइट, ये लॉन्ग वे जाने वाला जो चक्कर है ना, ये सबके हिस्से में नहीं आती नहीं हमारी आती, इंडस्ट्री में, नहीं स्पेशली आती. इस इंडस्ट्री में. Yeah, मे भी right. बाहर होता होगा बट यहाँ तो नहीं. एंड समवन हु हैज क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ 8 years ना, he or she is going to be a long time घोड़ा. एक्चुअली तो ऐसा बहुत होता है, बहुत नए नए लोग आते हैं, बहुत नए नए लोग जल्दी जल्दी चले भी जाते हैं. बट यू नो, आई रियली एडमायर यू फॉर दिस कि व्हाट यू हैव डन. Maybe we don't talk that much, maybe we are not connected every time, but you know, whenever we are connected, there is something called the positive vibes that we share. that vibes, true. That matters a lot, because here what I have seen, यहाँ पे एक independent woman, एक मतलब अच्छे प्रोफाइल वाली woman who has been something of her own, doesn't support the other woman in the same way, in the equal way, especially from the artist True. field. True. And you have seen that a lot. True. Okay, so yeah, by this I would want to wind up the entire show, but before I wind up the entire show, I would want you to definitely say something to all the girls out there who are still in the nutshell and want to come out and explore themselves and do something great. And ये सारे phases उनके लाइफ में भी होते हैं, तो उनको थोड़ा आप बोलो कि at least through this camera कि bro, this happens with everybody and you have to come out and then you are the king. Actually bro, this happens with everybody, so don't worry about it. ये जो धीरे धीरे वाली फेज है ना, ये आपको और हैप्पीनेस और इतनी खुशी देगी बाद में, जब आप मेरे जैसे 13 साल 14 साल के बाद आप पीछे देखोगे कि आई हैव डन ऑल दिस थिंग, लाइक यार इट्स जस्ट द बिगनिंग, तब वो वाली फीलिंग आती है. Right. तो आई थिंक लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, दे आर द बेस्ट. तो मुझे वही लगना है. कछुआ इज़ द बेस्ट आई गेस. एंड डोंट वरी, जस्ट अपना पेशेंस रखिए. आजकल ये जो डेस्परेट वाले आप प्लीज़ मत बनिए, अच्छे से काम कीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, बी यू, बी विथ योर फैमिली, बी पेशेंस रखो और हार्ड वर्किंग बनो एंड रास्ते खुल जाएंगे. Right, for the people who say ना कि कुछ आर्टिस्ट ने उस समय से शुरू किया जब कंपटीशन ज़्यादा नहीं था एंड ऑल, बट सी हर, शी हैज़ बीन इनटू एवरी फेज. अ टाइम वेयर देयर वाज नॉट मेनी सिंगर्स on stage Yeah, performers, true. but then now there are a lot of singers Lots and of. she's still doing, I guess, the best. If I say that, it won't be wrong at all, No. because many of them are there, but she is something different and that's why people choose her. So anyways, it's not because she is the guest of my show. Yeah. I want to tell मैं you, बोलने वाली थी वही बात. and I wanted to tell you all of these because you know it matters a lot when a woman who has seen so much in her life can inspire all of us out there. And you know, ये वाले शो में ऐसा नहीं है कि एक वुमन गेस्ट बैठी है और एक वुमन पूछ रही है तो दिस कैन ओनली बी हर्ड बाय अ वुमन. नो, Nothing like all that. the guys out there can also get inspired from her entire journey. Thank you so much Navya Jayati Welcome. for being a part of this show, and I hope you had a heart to heart वाला session. लॉट्स ऑफ, दिल खोल के बहुत कुछ बोल दिया आज, बाद में ना पड़े घर में जाके. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली वेरी यू नो कनेक्टिंग. कुछ बातें हम लोग इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, बट वहाँ पर बोले जाता है आपने कैरियर कैसे शुरुआत किया, आपने ये कैसे किया, बट द थिंग्स आर डिफरेंट. यू नो, आर्टिस्ट के लाइफ डिफरेंट होते हैं. नॉट ओनली आर्टिस्ट, वुमेन हो या मैन हो, मतलब
उनके अंदर बहुत कुछ होता है, उनके पास्ट बहुत कुछ होता है, तो वो कभी कभी खुलना, बाहर निकलना, बोलना ये ज़रूरी है. Right. So, see, this is one show where Navya is not going to sing because she is here, a woman first, and probably के बाद. तो यू आर सेइंग कि जस्ट वाइंड अप विद द सिंगिंग. हाँ, मतलब हम सुन सकते हैं. चलिए ये सबके लिए है जो लोग देख रहे हैं ये वाला. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी. क्या बात है. See you people next Wednesday with a fresh new episode and some amazing person on this side of mine. I don't know who will that be, but that is again going to be a very interesting episode. Thank you so much once again for giving us time. And with this, we'll wind up. Good night, Shivratri, Shabba Khair. If you love the episode, you can definitely share and like too and comment too and nothing else. Bas, khatam.